Hello friends, welcome to my YouTube channel Fingertip Update by C. Devasish Sahu. Today we are going to discuss about the new HSN 2022 amendment in Custom Tariff Act and GST HSN with effect from 1st January 2022. As you all are aware that there are certain important amendments are made in the HSN code issued by international body, that is World Customs Organization WCO. India, by its Finance Act 2021, already amended the first schedule to the Finance Act, that is the Custom Tariff Act, in order to modify the latest HSN as per the HSN 2022. Parallelly, CBSE has issued certain important notification to amend the HSN code as per the GST Act. As you all aware that the GST Act adopt the HSN code prescribed in the Custom Tariff Act. Okay, so let's discuss briefly about the important changes and how to accommodate such changes in your system. So before proceed to the next new slides, so we should know what is the HSN code. You know that the HSN code is issued by the World Customs Organization. Okay, that WCO is an independent intergovernmental organization that maintain and periodically update the codes in line with changing nature of global trades. The latest set of codes HSN 2022 will be used to capture the trade in variety of new fields. That is the ये जो common code है ये all international trade के लिए use होता है. Second, why India is binding to adopt this new HSN code? Before that, आपको ये पता होना चाहिए कि what is the meaning of HS Convention. HS Convention का मतलब ये होता है कि जो International Convention of Harmonized Commodity Description and Coding System enter into force on 1st January 1988. जो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होते हैं, जिस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर obliged to ensure that their custom tariff and statistical nomenclature of for both import and export are in conformity with the harmonized system. Since India is party to the HS Convention, necessary amendment is required to be made in the Custom Tariff Act. Okay, so क्योंकि ऑलरेडी ये उसका एक पार्टी है टू द कन्वेंशन, सो हमको ये इंपोर्टेंट अमेंडमेंट को अडॉप्ट भी करना था. कहां पे करना था? कस्टम टैरिफ एक्ट में. जब हम जीएसटी में ऑलरेडी कस्टम टैरिफ एक्ट का एचएसएन को अडॉप्ट करते हैं, तो अगर हम कस्टम टैरिफ एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल को चेंज कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट को, तो विजिबल हमको भी जीएसटी का भी एचएसएन कोड को चेंज करना पड़ेगा. चलिए देखते हैं. उसके पहले मैं आपको ब्रीफली बताता हूं कि अभी हम लोग का जो एचएसएन कोड है उसका कैटेगराइजेशन कैसे होती है. जैसे हम ये बताना चाहता हूं कि जो एचएसएन कोड होती है उसमें जो पहला 2 डिजिट होती है वो चैप्टर कोड होती है. सेकंड 2 डिजिट्स वो एचएस हेडिंग होती है. देन नेक्स्ट 2 डिजिट इज एचएस सब हेडिंग एंड नेक्स्ट 2 डिजिट टैरिफ लेवल आइटम. एंड दिस 73, so sub example we are discussing about the one tariff code is 73031010, that is edible vegetable root onion and fresh chill onion. And you know this chapter is there is 21 chapter in the custom tariff act and 99 headings. आप अच्छे से देखिए, ये जो पहला 222 टोटल 6 डिजिट कोड है, ये 6 डिजिट कोड इंटरनेशनल कोड्स होती है, और ये जो कोड होता है ये इंडिया अपना यूज करता है फॉर अपना रेगुलेशंस के लिए. ओके, लेट्स मूव ऑन. अभी मैं आपको एक ब्रीफ बनाया कि अपना कि आप अगर आपको रेडीमेड हैंडमेड चाहिए कि कौन सा एचएसएन चैप्टर कोड किसके लिए एप्लीकेबल होती है, तो मैंने आपको ये फिंगर टिप में बताया हूं. जैसे कि सेक्शन 1 चैप्टर 1 to 5 कवरेज क्या कर रहा है? लाइव एनिमल्स. ओके, सिमिलरली ये आप पढ़ सकते हैं. फॉर एग्जांपल 84 एंड 85 देखिए. जैसे कि 84 एंड 85 चैप्टर्स, यहाँ पे बोला था ना 21, वो आगे थोड़ा स्क्रीन में कम आ रहा है. 84 85 मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. अगर आपको कुछ मशीनरी का एचएसएन खोजना है तो आपको चैप्टर 84 और 85 में देखना पड़ेगा. ये आपका फिंगर टिप है जो कि आपको याद रखने में इजी होगा कि कौन सा चैप्टर किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बिलोंग्स करता है. अब हम आते हैं who need to quote HSN under GST. मैं आपको थोड़ा सा रिकैपिटुलेट करा देता हूं कि अभी जो as per the latest amendment, जिनका टर्नओवर, दोज एग्रीगेट टर्नओवर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बिलो 5 करोड़, फॉर एवरी B2B transactions they have to quote the 4-digit code of the HSN code, and for the B2C transaction they are optional to quote the 4-digit HSN code. But whereas the aggregate turnover is exceeding rupees 5 crore, then both for B2B and B2C transaction you have to maintain your 6-digit code. Okay, so next move on.
व्हाट इज द अमेंडमेंट? अभी अगर मैं अब हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पे अमेंडमेंट दो जगह पे हुई है। जैसे पहला हुआ कि फास्ट शेड्यूल टू द कस्टम टैरिफ एक्ट, उसमें फाइनेंस एक्ट में हुआ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। इसके लिए अभी रिसेंटली एक सीबीआईसी ने कोरिलेशन ऑफ कस्टम टैरिफ बिटवीन 2021 एंड 2022 इशू किया है। मतलब जो 2021 में जो कस्टम का टैरिफ था, जो 2020 में चेंज हुआ, उन लोग उसको कोरिलेशन किए हैं कि फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑल द यूजर्स। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो उसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है। सेकंड, अंडर जीएसटी में क्या हुआ कि आपको बता दूं कि जो पहला एचएसएन कोड इंप्लीमेंट हुआ था, दैट इज वाइड नोटिफिकेशन नंबर 1 2017, जो कि टैक्सेबल जीएसएसएन के बारे में बताया गया था। जो नोटिफिकेशन नंबर 2 2017 इशू हुआ था 28 जून 2017 एट द टाइम ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू जीएसटी रिजिम, उस टाइम पे ये जीएसटी एग्जेम्प्टेड कोड्स के लिए बताया गया था। बाद में 2021 में दो अमेंडमेंट नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन नंबर 1 को अमेंड किया नोटिफिकेशन नंबर 18 और नोटिफिकेशन नंबर 2 का अमेंड किया नोटिफिकेशन नंबर 19। इसका भी हम थोड़ा सा ब्रीफली आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द कोरिलेशन, जो अभी डिपार्टमेंट सीबीआईसी इशू किया है, इसका क्या कोरिलेशन, क्या मीनिंग होती है। ध्यान से देखिएगा उसको। ये आपका कोरिलेशन कस्टम आया था, उसमें ये आपको पीडीएफ में दिखाऊंगा। ये पीडीएफ आपको सीबीएसई का वेबसाइट में मिल जाएगा। इसमें क्या बताया गया था, अब अच्छे से देखिए। ये बताया कि हाउ टू रीड दिस कोरिलेशन डॉक्यूमेंट्स। आपको यहाँ 5 डॉक्यूमेंट दिख रहा है कोरिलेशन कोड, इसको मैं आपको ब्रीफली समझाना चाहता हूँ। उसके पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है कि टैरिफ एलएचएस एंड टैरिफ आरएचएस। यहाँ पे वो लिखा चाहिए। एलएचएस का मतलब ऑलरेडी जो पहले 2021 में कोड्स था, और आरएचएस का मतलब व्हाट इज द अमेंडेड कोड, दैट इज कॉल्ड आरएचएस। फॉर एग्जांपल, एसएफ का मतलब होता है कि जो 2021 में जो कोड था 2022 में वही कोड से हैं, इसमें कोई नो चेंज है, तो दिस इज कॉल्ड एसएफ। इंपॉर्टेंट बात ये है। और एक चीज होती है कि एनएफ, ये देखिए एनएफ का ये मतलब होती है जो न्यू एचएसएन कोड यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ, ये पर्टिकुलरली एक एचएसएन के ग्रुप के अंदर में इंप्लीमेंट हुआ। जैसे अब 84193400 इस 84193100 को रिप्लेस करके आया, और ये कोड और कहीं पे रिप्लेस नहीं होगा। जैसे एनपी का मतलब हुआ जो 84193300 है, ये जो पुराना टैरिफ कोड 2021 का था, उसमें मल्टीपल जगह के साथ रिप्लेसमेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल एनपी, जैसे कि 84193300 रिप्लेसिंग 84193100 एंड 84193200 एंड 84193900। देखिए ये कोड ये 3 जगह पे रिपीट हो रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि जो ये नया टैरिफ कोड है, इसका रिप्लेसमेंट इसमें हुआ और इसमें चेंज हो गया। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान की देखना है कि जो यहाँ पे कोड आ रहा है डीएफ का मतलब क्या है कि ये जो कोड है, ध्यान से देखिए 84193900 कोड है, ये कोड तो रहेगा, उसके साथ ये नया कोड ऐड हुआ। That means this code will remain in the new tariff code. Along with that, the same code is already introduced under that head. समझ में आ गया? तो हमको ये देखना है कि जो NP हुआ, तो मतलब ये न्यू कोड आ गया। NP मतलब न्यू कोड। देखिए आप, SF means RHS आइडेंटिकल कवरेज ऑफ द LHS इक्वल है, जैसे कि ऊपर में कोई चेंजेस नहीं हुआ। DF RHS कवरेज डिफर बट रिलेटेड टू ओनली टू वन एंट्री RHS। DF का मतलब ये हो गया कि ये जो एग्जिस्टिंग है ये तो रहेगा और उसका स्कोप को वाइडेंट कर दिया जाएगा। F का मतलब स्कोप वाइडेंट हो रहा है। D और F को कॉम्बिनेशन में पढ़िए। सिमिलरली NF जो मैं बताया आपको, NF जो होता है वो सिंगल एक जगह पे रिपीट कर रहा है, बार बार जगह पे रिपीट नहीं करता है कोड। और जो NP होती है वो बार बार जगह पे रिपीट कर रहा है, जैसे कि ये कोड है 84193300, ये रिपीट कर रहा है हर कोड के साथ में। अगर आपको इजीली समझना है तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कस्टम टैरिफ एक्ट में क्या हुआ। मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं, आपको दिखा। ये देखिए 84 आपको बताया था ना कि यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे ऑलरेडी पहले क्या था 84193100 पहले कोड था, उसको ये रिप्लेस कर दिया। अच्छे से देखिए, अब देखिए 841920 के बाद और 31 यहां पे नहीं है, ये यहां से हटा के उसके जगह पे 33 को रिप्लेस कर दिया गया। राइट,
अंडरस्टूड? इसका ही मतलब हुआ ये कोड यहां से वैनिश हो गया और ये नया कोड यहां पे इंप्लीमेंट हो गया। दिस इज द अमेंडेड कस्टम एक्ट, जहां पे रेट दिख रहा है ये सब नया चीज इंट्रोड्यूस हो गया है। ओके, सेकेंड हम आगे बढ़ते हैं कि अभी हम अमेंडमेंट, अब जीएसटी एक्ट में क्या अमेंडमेंट हुआ। अभी जीएसटी एक्ट में यह अमेंडमेंट हुआ कि जो नोटिफिकेशन नंबर 18 में, उसमें बहुत सारे जो कोड्स नया इंट्रोड्यूस हुए, उसमें से कुछ कुछ कोड जो कि 5% कैटेगरी में है, 12% कैटेगरी में है, 18% कैटेगरी में है, उसको उस कोड के अंदर में उसको ऐड कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए, ये जो कोरिलेशन कोड में यह था कि जो 84191200, अच्छे से देखिए, ये जो नया कोड है, ये नया कोड इस कोड के साथ ऐड हो रहा है। जैसे ये कोड रहा डीएफ का मतलब ये जो कोड का स्कोप वाइडेंड हो गया, जैसे कि ये कोड इसके साथ एक्टिवेट हो गया, जैसे कि सोलर वाटर हीटर एंड सिस्टम। अभी जो पहले 841919 था, ये कोड था, उसके साथ ये ऐड हो गया, 841912 को ऐड कर दिया गया। ओके, अभी हम लोग को एक चीज देखना है कि बहुत सारे कोड्स जो मेरा कस्टम टैरिफ एक्ट में अमेंडेड हुआ, वो सब कोड का रेट सीबीएसई ने नोटिफाई नहीं किया है। मैं आपको एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाने वाला हूं। देखिए, हमको एचएसएन कोड कहां मिलेगा, आपको सबको अच्छे से पता है कि हम जब जाते हैं कि जीएसटी पोर्टल में, वहां पे भी एचएसएन सर्च करने का ऑप्शन आता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है, एक ई इनवॉइस पोर्टल है, उसमें भी हम आपका एचएसएन सर्च कर सकते हैं। आइए देखते हैं उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ध्यान से देखिएगा, जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, जो कि एक चीज मिसिंग है उसके अंदर में। आइए मैं दिखाता हूं। एक चीज को ध्यान रखिए, ये जो 841912 जो कोड है, जो कि 5% कैटेगरी में इंप्लीमेंट हुआ है, तो मेरा जो एग्जिस्टिंग जीएसटी पोर्टल है, इसमें शो करना चाहिए। आइए हम देखते हैं इसमें शो करता है या नहीं करता है। अभी हम देखते हैं, हमको ये चाहिए ना 8419। अब देखिए 8419 में ऐसा कोई कोड्स अभी शो नहीं हो रहा है। देखिए 8419 में 841912 कोड यहां पे शो नहीं हो रहा है। ओके, आप देख पा रहे हैं यहां पे वो कोड्स नहीं है। ओके, बट इसका जो वर्डिंग था सोलर वाटर हीटर सिस्टम, वो अवेलेबल है, बट वो कोड यहां पे अवेलेबल नहीं है। बट ये कोड कहां पे अवेलेबल बताऊं? ये देखिए, आप जाइए ई इनवॉइस पोर्टल, ई इनवॉइस सिस्टम, यहां पे सर्च करिए, दैट इज कॉल्ड मास्टर कोड्स। यहां पे एचएसएन कोड सर्च करिए अंडर व्हाट इज द चैप्टर 84 एंड देखिए, हमको वो कोड नहीं मिला था, वहां पे कोड क्या था 8419। अभी देखिए यहां पे आपको मिलेगा अभी 8419। देखिए यहां पे आ गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो जीएसटी पोर्टल है, वहां पे कोड को अपडेट नहीं किया गया है, बट जो ई इनवॉइस पोर्टल है, यहां पे ये मास्टर कोड्स को अपडेट कर दिया गया है ना अजीब चीज? यही चीज मैं आपको दिखाने वाला था। तो इसीलिए आपको भी करना क्या है, मेरा टिप ये है कि आप जितना सारा जो कोड्स, जो कस्टम टैरिफ कोड है, उसमें जो आप ये सर्वे कीजिए कि जो कौन सा एचएसएन का स्कोप वाइडेंट हुआ, किसका न्यू बनाया गया, और अपना सिस्टम में इंटीग्रेट कीजिए। क्योंकि मास्टर कोड आपको पता ही होगा, ये जो कोड्स हैं, ये इनवॉइस पोर्टल में अपडेट हो चुका है। इसका ये मतलब हुआ कि जो आप फ्यूचर का इनवॉइसिंग करेंगे, आप ये कोड्स में इनवॉइसिंग करेंगे। और आप तो बता रहे होंगे, मैं तो इनवॉइसिंग तो नहीं करूंगा, मेरा जरूरत क्या पड़ेगा? आपको ये बता दूं कि आज पर जीएसटीआर 1 आपको एचएसएन वाइज समरी ऑफ परचेजेस को भी शो करना पड़ता है। इसका यह मतलब हुआ, अगर आपका जो परचेज रजिस्टर्ड है, उसमें जो
अगर मान लीजिए कोई ऐसा सप्लायर है जो न्यू एचएसएन कोड के माध्यम से आपको डॉक्यूमेंट इशू कर रहा होगा, वो भी आपको कैप्चर करना पड़ेगा आपका सिस्टम में। ओके, ये मतलब नहीं कि आप अगर कोई सेल्स आपका नहीं है आप अपना कोड्स क्यों अपडेट करेंगे, नहीं, आप जो बाय भी करते हैं जो न्यू एचएसएन कोड को, उसको भी आपको जीएसटीआर 1 में टेबल 12 में उसको दिखाना पड़ेगा। इसीलिए आपको अपना इनवर्ड रजिस्टर्ड परचेज रजिस्टर्ड के लिए भी न्यू सिस्टम न्यू एचएसएन को पढ़ के अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ओके, सो अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो मैं कुछ उसमें हेल्प कर पाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।